Hello everyone, hope all are you doing well. This is my first video on the YouTube channel and so I decided to have a video on the DRDO Septum questions. Because I am very much late to record this video, already a lot of videos have been posted on the YouTube, so I thought that it is better to have a oral questions because it take a little bit time to record a video with to write all those questions on the paper and pen because seriously I don't have as such equipments, but let it be. So let's get started with the questions. There was a question from the acid basis in salt. So the question was that कि अगर जिंक जो है आपका NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है तो वो क्या देता है Na2ZnO2 देता है बिकॉज जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है राइट. सो दिस इज द टॉपिक फ्रॉम द एसिड बेसिस इन सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द law of octave was given by, there were the different options like the Newland, Dobner and all Mendeleev. So the correct option was Newland. This is a topic from the periodic table, class 10th. Next we have the question from the oxidation and reduction. The simple reaction was given to you and it was asked that which substances oxidize and the which substances reduce. You must have seen that reaction in the chapter 1 of class 10th, chemical reactions and equations, that MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2. अगर आपके पास NCERT क्लास 10th होगी तो उसके जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक है इसमें ये रिएक्शन गिवन है और उसमें पूछा गया था. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द वर्क डन. वर्क डन आपका देयर वाज ऑप्शंस कि पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव. ए ऑप्शन वाज दैट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. बी ऑप्शन वाज दैट ज़ीरो. सी ऑप्शन वाज दैट नाइदर पॉजिटिव नॉर ज़ीरो. सो उसमें एक ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव और ज़ीरो. सो the more appropriate answer from myself was that either positive or negative, right? Next question is from the recoiling energy, and there was no graphs in the whole uh, paper because जो मेरी शिफ्ट थी आई हैव गिवन दैट एग्ज़ाम, तो मेरी वाली शिफ्ट में कोई भी आपका ऐसा ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं आया था फ्रॉम द GS, राइट. Next we have the question from the there was the values given and was given that what is the mass on the other planet. आपने उस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे ग्रेविटेशन से कि अगर अर्थ पे इतना मास है तो मून पे कितना होगा एंड सो ऑन. Next question is from the electricity chapter. That was the question from the power topic. You have given the, it is a direct question that आपको जो है पावर दे रखी थी that is 220 watt and the voltage was given the 110 volt, right? And you have to find the power when the voltage is 120 volt. सो आपको करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको P इजक्वल टू वी आई का फॉर्मूला लगाना था. देन आपको उसकी I की वैल्यू निकालनी थी बिकॉज P अपॉन V की जो है आपको फर्स्ट केस में वैल्यू गिवन है, राइट. नेक्स्ट आपको क्या करना था कि जो आपका सेकंड वाला फॉर्मूला है सेकंड वैल्यू उसमें आपको सेकंड केस में वैल्यू रख देती थी. दैट इज P इजक्वल टू V इंटू आई, राइट. सो दैट वॉज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पावर. अल्टीमेटली मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको GS में अच्छा स्कोर करना है जस्ट गो थ्रू टू द 6 to 10th क्लास, स्पेसिफिकली 9th and 10th क्लास, बिकॉज जितने भी GS से क्वेश्चन आए हैं वो आपके 9th और 10th क्लास से आए हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द वेवलेंथ. अब वेवलेंथ आपको क्या था कि फ्रिक्वेंसी गिवन थी और आपको क्या निकालनी थी, वेवलेंथ निकालनी थी एंड द स्पीड ऑफ लाइट वाज आल्सो गिवन टू यू, right? So that this is a too much easy question. As this is my first video, so I am little bit nervous and if I do mistakes please forgive me. Just go for the content in the first video. So next question we have the, in vehicles which type of mirror is used. So as you know that convex mirror is used, right? Next question was that अगर आपका along the corners of the opaque ऑब्जेक्ट से जो है अगर आपकी लाइट पास करेगी तो क्या होगा, डिफ्रेक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा, स्कैटरिंग होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा.
So that was again the easy question. Next question was that from the topic latent heat of fusion. इसमें आपको डायरेक्टली बोल रखा था कि देयर वाज अ डिफरेंट ऑप्शन, डायरेक्टली बोल रखा था कि आपको क्या है कि अगर आपका जो है गैशियस जो है आपका जो है गैस जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर सॉलिड जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सो फ्यूजन में आपका क्या होता है, डायरेक्टली इट विल कन्वर्टेड टू द फ्रॉम द सॉलिड टू द लिक्विड. पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रखी थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, एज यू नो दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इसमें आपको दे रखा था कि Zn प्लस H2SO4 है, सो इट विल गिव विच गैस, राइट. सो आपका कौन कौन सा द ऑप्शंस फॉर लाइक H2 हो गया, CO2 हो गया, Cl2 हो गया, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आंसर वुड बी हाइड्रोजन, दैट इज H2. बिकॉज आपको पता है जब मेटल जो है आपका बेस मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल. इसमें आपका क्या था कि दो आपको कंपोनेंट्स दे रखे थे, रिएक्शन दे रखी थी डायरेक्टली, और आपसे पूछा गया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. उसमें आपका ये था कि जो होमोल्यूकोस सीरीज के मेंबर्स होते हैं वो कितने यूनिट से डिफर करते हैं. सो द आंसर वाज 14 यूनिट्स. बिकॉज आपको पता है जैसे अगर हमारे पास क्या है, मिथेन है, मिथेन का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, CH4 हो गया. एंड जो इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, C2H4 हो गया. तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा आपका, 14 यूनिट्स का आएगा. बिकॉज आपका होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस चलता है. तो अगर आप CH2 को ऐड करोगे तो इट विल गिव द 14 यूनिट्स. सी का आपका कितना हो गया, 12 हो गया, और H2 का कितना हो गया आपका, 2 हो गया, राइट. सो इट विल गिव द 14 यूनिट्स. तो होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफरेंस आता है, 14 यूनिट्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. So this is a question from the class 12th if we talk about the CBSE board, right. So इसमें आपका जो है ऑप्शंस दे रखे थे, पॉलीस्टाइरेन या फिर आपका टेफ्लॉन हो गया या फिर पॉलीइथेन हो गया, और आपको लास्ट में ऑप्शन दे रखा था PHBV, दैट इज़ अ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट वालेट. ये जो है ये आपका सर्जिकल थ्रेड्स में यूज़ होता है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है तो एट द एंड ख़त्म हो जाता है बॉडी से. सो PHBV वॉज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. उसका कुछ आपको दे रखा था, आई डोंट रिमेंबर एज सच. तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था. शायद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह दे रखी थी कि ये मास्टर ग्लैंड है या ऐसा कुछ दे रखा था, बट द ऑप्शन वॉज पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से. और आई गेस एक और क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द लाइट सेंसेशन एंड द लाइट सेंसेशन. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ये था आपका रेटिनॉल, राइट. नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था केमिस्ट्री से, दैट इज़ द एलॉय, कि जो ब्रास होता है उसके कौन कौन से मेटल्स हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आई रिमेंबर फ्रॉम द GS पार्ट. And which I went for the second shift for the first day, so I thought that it should be recorded. So hopefully you like this video, and अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ इसको मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा, राइट. थैंक यू.